الحمدللہ یہ ہماری فائنل انسٹالیشن ہو چکی ہے. 10 عدد پینل ہیں جو کہ ہم نے انسٹال کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ 5 پینل کی سٹرنگ ہے اور نیکسٹ یہ 5 پینل کی سٹرنگ ہے. ٹھیک ہے جی, ٹوٹل ہماری کیپیسٹی جو 12 پینل کی ہے. فی الوقت ہم نے 10 پینل انسٹال کیے ہیں, باقی جو ریمیننگ ہے فیوچر میں انشاءاللہ انسٹال کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. جی جناب, یہ ہماری انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. جس چیز کو ہم نے انشاءاللہ یہ کور کر کے اس کو, یہ کور اس کا پڑا ہوا ہے, کور کر کے آپ کو فائنل اس کا جو ہے وہ فنکشن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کتنا لوڈ رن کر سکتے ہیں وہ, اور اس کے کنیکشن وغیرہ. ٹیسلا کا جو انورٹر ہے اس کی تھوڑی سی کانفیگریشن ہے, پاسورڈ لگا ہوتا ہے تو بعض حضرات کو پاسورڈ کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. تو وہ پاسورڈ والا بھی طریقہ بتائیں گے کہ وہ پاسورڈ کیا ہے, اس کی کنفیگریشن کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی جناب, آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ایک نئی پروڈکٹ جو ہے ٹیسلا 6 کلو واٹ ریٹنگ کے ساتھ ہے. یہ ہمارے پاس انفینیٹیز کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس کے ساتھ ہم جو پی وی کنیکٹ کر سکتے ہیں. پی وی جب بھی لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب فوٹو وولٹک, مطلب سولر سیل کتنے, مطلب سولر پینل کتنے کنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ 6500 واٹ کے ہم اس پروڈکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو ہمیں یہ آگے آؤٹ پٹ دے گا وہ 6000 واٹ کی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے آ جائیں تو اس کا جو فیچر یہ ہے کہ یہ اسمارٹ لوڈ کے ساتھ آتا ہے پلس. ٹھیک ہے, وداؤٹ بیٹری بھی یہ کام کرتا ہے. اس کے بعد اس کے جو وائی فائی ڈیوائس, وائی فائی لوگو اسٹک جو ملتی ہے بعض, جیسے انوریکس ہے, فرونس ہے, ٹھیک ہے, گرو واٹ ہے, وہ کمپنیاں دیتی ہیں. وہ اس کی وائی فائی لوگو اسٹک باہر لگی ہوتی ہے ان کے ساتھ, مگر اس ٹیسلا کے ساتھ یہ اس کے اندر بلٹ ان لگی ہوئی ہے. جسٹ آپ اس کو وائی فائی دیں, ٹھیک ہے, اور اپنے موبائل پہ آپ اس کی جو ٹیسلا ایپ ہے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو آپ اس کی پروڈکشن وغیرہ, اس کی کنزپشن, ایوری تھنگ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جناب آ جائیں اس کے جو باقی فیچر ہیں اس کے ساتھ. ہم اس کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس کی کانفیگریشن مشکل سمجھتے ہیں. مشکل اس لحاظ سے کیونکہ اس کے جو ایل سی ڈی ہے اس کے اندر اگر ہم فنکشن کے اوپر جائیں تو اس میں یہ لاک لگا ہوتا ہے, مطلب یہ پاسورڈ مانگتا ہے, پاسورڈ سے آگے چل کے اس کی سیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. تو جناب اس سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی جو کانفیگریشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور بعد میں ہم اس کا جو لوڈ باقی کنفیگریشن وہ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو ہم نے اس کے ساتھ فی الوقت 10 پینل لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی, 550 واٹ, ٹھیک ہے, بائی فیشل, اور ساتھ میں ہم نے 4 عدد بیٹری بینک یوز کیا ہے, ٹال ٹیوبولر بیٹری جو 1800 ہے. ٹھیک ہے, 185 ایمپیئر کی ایک بیٹری ہوتی ہے, تو 4 عدد ہم نے وہ یوز کیے ہیں. اور اس سسٹم کی باقی جو چیزیں سیم ہے تقریباً. ٹھیک ہے, ہم نے اگر اس کے اے سی ڈی بی دیکھیں یا ڈی سی ڈی بی دیکھیں, دونوں میں ہم نے کیا کیا ہے, یہ ایک ڈیوائس لگائی ہے. ٹھیک ہے, وابڈا کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ انورٹر کا شنائڈر کا بریکر آ گیا, چینج اوور آ گیا لائٹ لوڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہمارا شنائڈر کا یہ آؤٹ پٹ پہ اس کے لگا دیا ہے. ساتھ اس کے جناب ہمارا ہیوی لوڈ کے اوپر چینج اوور آ گیا, اور اس کے ساتھ بریکر آ گیا. یہ ہماری اے سی ڈی بی ہوگی. یہ ہمارا آ گیا بیٹری بینک جناب شنائڈر کا 100 ایمپیئر کا جو ہمارا بریکر, اور یہ ہمارا آ گیا پی وی سولر کے ان پٹ کے اوپر. یہ ہماری دونوں ڈی بیز آ گئی. اب جناب ہم اس کی جو کانفیگریشن ہے اس کے آپ کو بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ نارملی ہے کہ جب آپ آن کرتے ہیں تو سسٹم, تو یہ آپ کو کانفیگریشن دیکھنے کو ملے گی. تو کانفیگریشن میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا ان پٹ آؤٹ پٹ آ رہی ہے. ہم جائیں گے جناب گریڈ کے اندر, گریڈ کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کو آ رہا ہے 220 وولٹ, یہ سولر کے دے رہا ہے, اور آگے کتنی پروڈکشن آ رہی ہے 532 واٹ.
ग्रिड नीचे आ जाएं आप, जो ग्रिड या वापडा पे 224 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट और 49 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। आगे हमारे घर में जो लोड चल रहा है 224 वोल्ट, ठीक है, आउटपुट है और 49 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अभी हमारा जो लोड हमने इसके ऊपर नहीं डाला क्योंकि नीचे काम हो रहा था, तो वो ग्राइंडर वगैरह या ऐसी हैवी लोड चला रहे थे जिसका टार्क वैल्यू ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको अभी बंद किया हुआ है। तो नीचे जो चार्जिंग स्टेटस आ रहा है बैटरी का वो 100% शो कर रहा है। ये मेन चीज़ें आ गई जनाब, आप जो नॉर्मली देख सकते हैं। वापस आ जाए, यहाँ से वापस आ गए तो अब जनाब हम इसका जो एनर्जी पैटर्न वो यहाँ पे हमारा होता है काउंटर रही है। ये काउंटर अभी चूंकि हमने इसको स्टार्ट किया आज ही, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को बताता हूँ। 00 भी शो कर रहा है ये तो टुडे, ठीक है, नीचे लिखा हुआ दिस मंथ, दिस ईयर और टोटल अब तक जितनी ये हमारी ये रिकॉर्ड करेगा। अब वापस आ जाएं, अब इसकी सेटिंग में जब जाते हैं सबसे पहले वाईफाई की सेटिंग है। वाईफाई की सेटिंग को ओपन करें तो यहाँ पे वाईफाई अभी अवेलेबल नहीं है, इसको हम वापस आ जाते हैं। क्लॉक इसका जो भी हमारा चल रहा है उसके टाइम के मुताबिक हमारा जो टाइम है आज और जो डेट है वो ये चल रही है, उसको वापस कर दें। अब आ जाएंगे इन्वर्टर। जैसे कि इन्वर्टर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसकी मतलब कि ये आगे कीपैड शो हो जाता है। तो इसका जो कोड है टेस्ला का वो है 838752। जैसे हम क्लिक करेंगे 83752 तो ये हमारा ये सेटिंग ओपन होती है। तो ये सिंपली कोड है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई समझ ना आए तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अब सबसे पहले हम सोलर पे आ जाते हैं। सोलर सेटिंग में क्या है कि सोलर पावर की प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले वो लोड को चलाए या बैटरी को चार्ज करे या यूटिलिटी को दे। यूटिलिटी को मतलब वापडा को बेचे। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट की हुई है वो है लोड फर्स्ट है, बैटरी उसके बाद है, लास्ट में फिर वो क्या करेगा हमारा यूटिलिटी को सेल करेगा। तो ये दो ऑप्शन होती हैं, पहली ठीक है बैटरी यूटिलिटी या लोड। उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये देखें, वेट कह रहा है वो BLU उसने कर दिया, बट हमें चाहिए लोड बैटरी यूटिलिटी, ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसकी ये देखें वो कॉन्फ़िगरेशन वेट कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन उसने चेंज कर दी, ये देखने LBU, ठीक हो गया जनाब। तो अब नेक्स्ट आ जाए चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी की। वो क्या कह रहा है, चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी हमारी मतलब कि सबसे पहले सोलर उसको करे या सोलर या ग्रिड करवाना है या ओनली सोलर पे करवाना है। तो हमने सोलर फर्स्ट रखा हुआ है। अगर सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये ग्रिड पे चला जाएगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी मतलब एनर्जी पैटर्न, जैसे बाज का उसमें लिखा हुआ है रिटर में, तो ये उसका एनर्जी पैटर्न है। सबसे पहले जो हमारा सोलर है वो घर को लोड को चलाएगा, उसके बाद यूटिलिटी वापडा और एंड पे हमारी बैटरी हमारा बैकअप देगी। ये हमारी मेन सेटिंग हो गई। अब वापस आ जाए ना, ये बैटरी का स्टेटस आ जाए। बैटरी की सेटिंग क्या है, सबसे पहले टाइप है बैटरी AGM, हम ड्राई बैटरी को बोलते हैं, फ्लोटेड बोलते हैं तेजाब वाली, और यूजर डिफाइन में वो भी हम अभी हमारी जो बैटरी है वो है फ्लोटेड वाली मतलब तेजाब वाली, तो हमने फ्लोटेड सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाकी जो ये सेटिंग है वोल्टेज वगैरह की, ठीक है, इसकी आप सिंपल सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी जो हमारी बैटरी के वोल्टेज हैं वो बनते हैं तकरीबन 58 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 4 बैटरी बनती हैं, फुल वोल्टेज 58 है, ठीक है जी। और जो हमारे नॉर्मल वोल्टेज बनते हैं वो 54 बनते हैं, जिसे हम फ्लोटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो ये यहाँ पे वही बाकी सारी सेटिंग इसने ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब वापस आ जाएंगे हम, ये उसका करंट हमने रखा हुआ है मैक्सिमम चार्जिंग करंट नॉर्मली 20, बट हमने बैटरी का जो ट्यूबुलर बैटरी का 10 एम्पेयर ज्यादा रखना होता है। 20 एम्पेयर नॉर्मली रखना चाहिए, बट ट्यूबुलर का 10 एम्पेयर ज्यादा रखे तो मतलब 30 एम्पेयर आएगा। अब ये दोनों चार्जिंग करंट और मैक्सिमम चार्जिंग हम 20 एम्पेयर रखा हुआ है, ठीक है जी। हम वापस आ जाएं, बैटरी भी हो गई, इन्वर्टर पे सोलर भी हो गया। अब AC पे आ जाएं। AC पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 230, जो हमारा इनपुट है वो लिखी हुई है। अप्लायंसेज हमने सिलेक्ट की, UPS भी यहाँ पे से हो सकता है, UPS को करना है। UPS मतलब कि हमारे जो ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह अगर यूज़ करने तो उसको। अब आ जाएं एक्स्ट्रा के अंदर। एक्स्ट्रा के अंदर जनाब हमारे जो प्रोटेक्शन लगी हुई है वो कहता है बजर ऑन है, ओके। ओवरलोड बाईपास, ओवरलोड का मतलब अगर हमारा सिस्टम है उसका इतनी प्रोडक्शन छत से नहीं आ रही, तो अगर हमने लोड ज़्यादा डाल दिया तो वो क्या करे, वापडा से मतलब अपना ले ले पावर ले ले। तो ये ओवरलोड बाईपास ऑन का मतलब ये है। इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये देखें ऑफ करेंगे तो वो ऑफ करवा देगा, ये देखें वो ऑफ करवा दिया, बट इसको आप ऑन रखें, ठीक है, ऑफ नहीं करना है इसको, ठीक है जी। बाईपास हमेशा किसी भी इन्वर्टर का ऑन रहने दें, ऑन। नेक्स्ट आ जाए ओवरलोड रीस्टार्ट, ये ऑफ है। अगर ओवरलोड हो तो साथ ही रीस्टार्ट हो जाए, नहीं, ये बार बार अगर ओवरलोड होगा रीस्टार्ट होगा तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, इसको ऑफ रखें। ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट, ये भी इसको ऑफ रखें।
अलर्ट व्हेन SRC इंटरप्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका जब कोई भी सोर्स है वो इंटरप्ट हो, मतलब कि वापडा इंटरप्ट हो या आपका ऊपर से जो सोलर इंटरप्ट हो, तो ये बीप देता है कि ये वो उसकी बीप है। ग्रिड रिवर्स फीड, रिवर्स फीड का मतलब है कि हमने वापडा को सेल करनी है। अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई तो इसको ऑन करवा दें, अगर नेट मीटरिंग नहीं है तो आप इसको ऑफ ही रहने। तो हमारी नेट मीटरिंग अभी इसके साथ नहीं है तो इसको हमने ऑफ रखा हुआ है। मेन सारी ये सेटिंग हो गई। उसके बाद ये पैरेलल ऑपरेशन आ जाते हैं हमारे। अगर आपके एक से ज्यादा यूनिट हमने लगाए हैं तो वो पैरेलल में आ जाएंगे फिर, ठीक है जी। हमने अभी सिंगल यूज कर रहे हैं इसलिए ये रीस्टार्ट है। अगर आप रीस्टार्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये जनाब इसकी मेन सेटिंग थी, ठीक है जी। वापस आ जाएं। अब इसका आइडेंटिफायर आ गया, इन्वर्टर हो गया, क्लॉक हो गया और वाईफाई हो गया। आइडेंटिफायर क्या है ये चेक कर लें आप। ये देखें, ये इसका बारकोड आ जाता है। अगर आपने इसको ऑनलाइन करना है आपके ऐप के थ्रू तो इसको स्कैन करना पड़ता है आइडेंटिफायर को, ठीक है। और इसकी भी एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा अभी यहाँ पे, चूंकि वाईफाई अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अब अपडेट किया है ये, इसका अपडेट करने के लिए मतलब इसकी सेटिंग वगैरह को अपडेट करने के लिए उसकी चीज़ है। बाकी इसका सीरियल नंबर, CPU नंबर, ये सारी चीज़ें इधर सीरियल उसमें आ जाती है इन्फो में। वापस चले जाइए, आपका नॉर्मली जो डिस्प्ले है उसका। तो जनाब बाकी इसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे अगर हम बात करें तो इसके भी ये IP21 है। पहली बात तो ये जो सिस्टम है IP21 का मतलब कि इसके नेट पे साइडों पे नेट लगी होती है जाली, और उसके नीचे वाली साइड पे दो फैन लगे हुए हैं, 1 2 कूलिंग विद फैन। जो हीट सिंक वाला जैसे IP65 में होता है इसमें नहीं है। इसको मेंटेनेंस इसकी रिक्वायर्ड होती है तकरीबन 15 दिन बाद या आप 20 दिन बाद। इसके जो दोनों साइडों पे ये नेट लगी हुई है इसको रिमूव करके इसको वॉश करें और दोबारा से लगाएं। और अगर आपके पास ब्लोअर अवेलेबल है तो इसको हवा के साथ सही तरह क्लीनिंग करें, एक चीज़। दूसरा बैटरियां अगर आपकी लिथियम हो या ड्राई बैटरी उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। ये ट्यूबलर है, इसको भी आप तकरीबन 2 हफ्ते बाद मिनिमम, जो ट्यूबलर बैटरी की 2 हफ्ते बाद, और जो दूसरी आपकी नॉर्मल पहले जो बैटरी यूज होती थी पुरानी तो उसको आप 1 हफ्ते के बाद जरूर जो है चेक करें। और जो छत के ऊपर हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं उसके आप क्लीनिनेंस कोई फ्रीक्वेंसी नहीं कि 15 दिन या 10 दिन बाद नहीं। आपने देखना है कि अगर ज्यादा डस्ट है आपके एरिया में और आपके पैनल गंदे हैं तो उनको सफाई लाजम है, ठीक है जी। तो ये मेन चीजें थी। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है टेस्ला से रिलेटेड, ड्राई बैटरी थे उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो आप जनाब हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके अगर हम लोड की बात करें तो इसके ऊपर हम ये 6 किलोवाट का यूनिट है। 6 किलोवाट का मतलब होता है कि पूरा आप ज्यादा 5500 जो इसके ऊपर आप लोड चला सकते हैं। आप 1 अदद AC चला लें या 2 अदद AC चला लें। 1.5 टन के इन्वर्टर AC की मैं बात कर रहा हूँ। 2 अदद आप AC चला लें प्लस 4 से 5 पंखे चला लें आप, सीलिंग फैन जो है, और तकरीबन 10 से 15 लाइट्स आप इजीली चलाएं, नो टेंशन। बट अगर आप कहते हैं जनाब हमारा एक AC है, एक हम वॉशिंग मशीन या एक फ्रिज चलाना चाहते हैं, ओके वो चलाएं। प्लस आप जो है साथ अगर एक AC बंद करके अपनी वाटर मोटर जो रेड पंप हमारा नॉर्मली घरों में यूज होता है वो अगर यूज करना चाहिए वो भी है ऑन, मतलब इसके ऊपर आप चला सकते हैं। बट लोड को आपने मैनेज करना है कि 5500 से अबव नहीं हो। अबव होगा तो ये सिस्टम के लिए जो है ना वो उसको ओवरलोड होकर ट्रिप होगा। तो उन चीज़ों को मैनेज आपने खुद करना है, ठीक है। कोई भी सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड लोड है, आप जो इसकी कैपेसिटी है, फर्ज करें इसकी कैपेसिटी है 6000 वाट, जो आपका कनेक्टेड लोड है वो 6000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड मैं लफ्ज इसलिए बात कर रहा हूँ कि फर्ज करें इसके साथ हम कहते हैं जनाब हमने 3 AC डाल दिए इसके ऊपर और 5 पंखे डाल दिए, एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है और एक हमने आयरन डाल दी। नहीं, ये कनेक्टेड लोड इसका ज्यादा हो गया। कनेक्टेड लोड उसको कहते हैं कि जो फर्ज करें 2 AC हैं, 3-4 पंखे और एक लाइट, ये इसका तकरीबन 6000 या 5500 बन रहा है, वो कनेक्टेड लोड इसके साथ रखें। हाँ, आपने एक चीज बंद करके दूसरी चीज चलानी है वो चलाएं, बट जो उसका मेन लोड है 5500 उससे अबव नहीं जाए। तो ये इससे आपका जो सिस्टम है वो उसकी लाइफ के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि रात के टाइम पे कुछ लोग कह रहे होते हैं हमने बैटरी बैंक हमारा अच्छा है तो हम जो AC वगैरह उसके ऊपर रन करें, बट ये आपकी बैटरियों को बहुत जल्दी से ड्रेन करेगा। ड्रेन होने की वजह से आपकी बैटरियों की लाइफ बहुत कम होगी। तो कोशिश करें जो हैवी लोड आपका AC, आपकी जो रेफ्रिजरेटर है, आपकी आयरन है, आपका ओवन है, ये चीज़ें बैटरी के ऊपर यूज़ ना करें। अगर वापडा है तो यूज़ करें, अदरवाइज वापडा और सोलर है, ठीक है, तो फिर यूज़ करें। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो देन बैटरी के ऊपर इसको रन नहीं करें। आपका सिस्टम बहुत जल्द जो है ना वो मतलब डिक्लाइन की तरफ जाता है, जिसे कहते हैं कि इसकी लाइफ कम होती है। बैटरियों की बात कर रहा हूँ।